Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news and editorial analysis which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial would be discussed in this session. Additionally, I'll be supplementing the content with some relevant information that can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. Today is 28th of June. The first topic is stricter rule for the unmanned armed aircraft. तो UAV सिस्टम है उसको किस तरह से रेगुलेट करना है इंडिया में, उसके लिए कुछ रेगुलेशन लेकर के आई है गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द रीसेंट अटैक्स व्हिच वाज हैपेंड इन जम्मू. द सेकंड इज गवर्नमेंट फेसेस अ टफ चॉइस ऑन इंटरेस्ट रेट. थर्ड, Iran refuses to give nuclear sites images to United Nations. Second last, PM pitches for early vaccination and avoid hesitancy. And the last is an editorial from the Hindu countering the next wave of COVID-19. Right? So this is an editorial talking about the future roadmap. Apart from this, there would be some MCQs questions, and these questions would help you in the upcoming prelims examination. The questions are basically based on the current affairs. Now, before I proceed with the news, just to tell you about that, we have launched IAS Gadgeted General Magazine for an year subscription, which you can avail at affordable price of 1500 rupees. So what you have to do, you have to just check the description section where I provided a link from where you can register yourself and buy this year's subscription, which will help you in the both prelims and mains examination. Now starting with the news, that is, before I proceed, those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. So the first news of the day, that is a structured rules for the unmanned aircraft system, important for your general studies paper 2, government policies and intervention for the development of various sectors, also important for your general studies paper 3, where internal security is concerned. Now न्यूज़ के अगर बैकग्राउंड को समझें, सो रिसेंट में जिस तरह से एयरफोर्स बेस जम्मू में अटैक हुई है, ड्रोन अटैक, उसके ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कुछ पोटेंशियल डिसीजन लेने की बात कही है दैट वुड मेक द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन फॉर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम मोर स्ट्रिंजेंट. राइट, तो किस तरह से जो ड्रोन की रेगुलेशन है वो इंडिया में की जाएगी और इससे पहले अभी तक की करंट में क्या रूल है, विल अंडरस्टैंड दैट एज वेल. Now the guideline has suggested a number of measures जहाँ पे काउंटर करेगी रोग ड्रोन्स. रोग ड्रोन्स ऐसी ड्रोन्स होती है जो कि एक्चुअली अनऑथराइज्ड होती हैं, विदाउट एनी परमिशन दे एंटर इनटू द एरिया. राइट, सो डिपेंडिंग अपॉन their validity and assets, they would be protected. Now what are the changes, and before changes, what are the current rule and regulation under the Government of India provisions? सो बात करें अगर करंट रूल की, तो सफिशिएंट गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर्स हैं, रूल्स हैं दैट प्रोवाइड टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी ड्रोन्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर टू द एंड यूजर्स. अगर किसी ने कहीं जगह से इम्पोर्ट किया है बेसिकली फ्रॉम एनी कंट्री, तो वो एंड यूजर की जो रिपोर्ट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड की जाती है. हाउएवर अगर रोग ड्रोन्स की बात करें, विल ऑलवेज बी ऑन नॉन कंप्लाइंट. उनको लेकर के इतनी ज़्यादा कंप्लाइंस इशू नहीं थी, बट यस अब टाइट रेगुलेशन की ज़रूरत है दैट रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ डिटरेंस विथ रिगार्ड्स टू द रोग ड्रोन्स. इसमें एक रिसर्च भी हुई है IIT मद्रास में. दिस इज नॉट देयर इन द न्यूज़पेपर, आई हैव एडेड जस्ट टू टेल यू कि अगर आप मेंस में लिखते हैं तो ये पॉइंट ज़रूर ऐड करें. रिसर्चर ने IIT मद्रास में इस तरह के एक्सपर्ट ने डेवलप किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ड्रोन दैट कैन काउंटर द रोग ड्रोन्स. राइट, जितने भी रोग ड्रोन्स हैं उनको ट्रैक किया जा सकता है विद AI पावर्ड ड्रोन विच वॉज बीइंग डेवलप्ड बाय द रिसर्चर्स एट द IIT मद्रास. Now lessons from Saudi Arabia. This things already happened in the Saudi Arabia. So 2019 में हुई क्या थी कि एक ड्रोन अटैक हुई थी सऊदी अरेबिया के ऑयल इंस्टॉलेशन में, and the government of India has expedited the process to come the guideline and counter on the rogue drones. So government of India has actually activated itself on that point of time also, but we do not have a stringent rule as per the the requirement of the rogue drones. So इस टाइम पे जब सऊदी अरेबिया में इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी, सो गाइडलाइन को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक कमेटी बनाई थी दैट वाज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सेफ्टी, जिसको BCSB कहते हैं, दैट कंप्राइजेज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो DRDO है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया CISF और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड. इन सारे के साथ मिलकर के एक रोड मैप बनाने की कोशिश की गई थी दैट हाउ
वी कैन हैव अ रेगुलेशन कि इस तरह से चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा सके इंडिया में. Now these guidelines suggested a number of measures to counter the rogue drone depending upon the viability and assist being protected. Now coordinated approach की ज़रूरत है. Basically definitely जिस तरह से इंसिडेंट हुई है इंडिया में जम्मू के रीजन में एयरफोर्स बेस पे, now this call for a very deterrent and rules that is very strict. तो further ये ज़रूरी होगी कि coordinated approach गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब डिप्लॉय करे टू काउंटर द रोग ड्रोन्स, जहाँ पे मेजर्स ये सजेस्ट की गई है कि एक स्टीयरिंग कमेटी बनानी चाहिए जिसमें रिप्रेजेंटेशन हो इंडियन एयरफोर्स से, कंप्राइजिंग द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट, डीजीसीए, राइट, एएआई जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ एक बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जितने भी रिसर्च एक्टिविटीज़ डिफेंस के लिए चाहिए होती है वो असिस्टेंस एनटीआरओ देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इंटेलिजेंस ब्यूरो और डीआरडीओ, इन सारे के साथ मिल करके दे नीड टू बी हैव अ क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड दीज कोऑर्डिनेटेड अप्रोच वुड डेफिनेटली हेल्प गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू काउंटर एनी रोग ड्रोन्स, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट योर आंसर इन द मेंस पेपर. Now moving to the second news, government faces a tough choice on interest rate. Basically important for your general studies paper 3, Indian economy and issues related to planning, mobilization of resources and growth. So what is there in the news? Basically due to the rise in the price, the inflation is rising. To counter that, what are the measures that government of India and RBI gonna take? So अगर बात करें यूनियन गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट एक डायलेमा में है वेदर जो क्वार्टरली रीसेट है इंटरेस्ट रेट की सेविंग रेट स्कीम्स पे, उस पर क्या की जानी चाहिए, राइट. एक्चुअल जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है इंडिया में वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज फॉर आरबीआई, राइट. आरबीआई टेक ऑल इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी measures and fiscal policies being handled by the central government, but again the stake is there from the central government as well in terms of the policy that is being made by the RBI. तो यहाँ पे देखना होगा कि इकोनॉमिक्स का कहना है कि अगर जो स्मॉल सेविंग रेट्स हैं अगर उसके इंटरेस्ट कट किए जाते हैं, सो दिस वुड बी कंसिडर एज एन अनपॉपुलर मूव, राइट, बिकॉज जो हाउस होल्ड की सेविंग है वो ऑलरेडी काफ़ी कम हुई है कोविड के बाद. People have actually spent what they have saved, right, and lots of the people have their salary cut. People do not have sufficient fund to get their livelihood done. So लोगों ने अपने जितने भी रिजर्व पैसे थे उसको भी खर्च करना शुरू किया है, और इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट में भी अगर गिरावट होती है सो दिस वुड डेफिनेटली रिजल्ट इन द सर्ज ऑफ इन्फ्लेशन, राइट. सो अगर आपसे इकोनॉमी बेस्ड प्रीलिम्स में अगर सवाल पूछे जाए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाए, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हाउ डज द इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन इज रिलेटेड. नाउ कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि जिस तरह से पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, जो पीपीएफ है, या फिर जो एनएससीज है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होती हैं, उनमें बेसिकली गवर्नमेंट की कोशिश थी कि इसमें रेट्स कट किए जाए. बट जिस तरह से वेस्ट बंगाल में अभी रिसेंट में इलेक्शन हुई है, कंडक्ट हुई है, उससे पहले गवर्नमेंट ने कोई रेट कट करने से मना कर दिया था. दे हैव डिसाइडेड दैट दे वोंट बी कटिंग एनी रेट. सो दिस वाज सम ऑफ द बेनिफिट्स दैट हैव गवर्नमेंट टेकन इन टर्म्स ऑफ टेकिंग अ पॉलिटिकल माइलेज, राइट. But now understanding the present scenario, you can see this infograph. हर इंस्ट्रूमेंट्स पे क्या एग्जिस्टिंग रेट है. अगर 1 ईयर के टर्म डिपॉजिट करते हो आप तो यू विल गेट 5.5%. Accordingly, if you have Sukanya Samriddhi Yojana, this is an scheme which is specifically for the girl, right? This ensure 7.6%. If you have monthly income account, this call for 6.6%, right? अगेन पीपीएफ में 7.1% है. सीनियर सिटीजन के जो सेविंग रेट्स हैं, जो स्कीम्स हैं, उसमें 7.4% है. सो दिस वुड नॉट बी आस्क्ड यू इन द एग्जामिनेशन, बट यू फॉर यू इट इज़ एसेंशियली बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह की चीज़ों को जानें. इंटरेस्ट रेट ऑन समथिंग विल हेल्प यू इफ यू आर आंसरिंग एनी क्वेश्चन इन इंटरव्यू. सो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. राइज इन इन्फ्लेशन की अगर बात करें, डेफिनेटली there are no pull around the corner, और गवर्नमेंट को ये पता है कि इन्फ्लेशन कैन शॉट अप शार्पली अप टू 6.3% in May. This has actually happened and averaging to 6.2% through 2021. So throughout the year we have seen the average inflation of 6.2%, which is too high, right? And inflation is expected to stay around 5.5 to 6% by 2021-2022.
2। सो इस ईयर भी एंटिसिपेशन है कि 5.5 to 6% रहेगी, जबकि आरबीआई ने और जितनी सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जितनी भी एक्सपर्ट बॉडीज़ बनी थी आरबीआई के सुपरविजन में, उन्होंने कहा था कि 4% के आसपास इन्फ्लेशन होनी चाहिए, राइट। बट देन ऑल्सो लेट्स सी हाउ विल बिकम नॉर्मल आफ्टर द कोविड सिचुएशन बिकम स्टेबल इन द कंट्री। Decline in the household saving की अगर बात करें, definitely the household saving has shrunken significantly in the quarters। अगर बात करें even before second COVID-19 waves के टाइम आरबीआई ने जो रिपोर्ट बताया उसमें he said that the saving data of the third quarter has also been deteriorated and it is being anticipated कि अगर फिर से कोई वेव कंटिन्यू होती है इंडिया में तो लोगों की जो पर्सनल सेविंग है वो बहुत ही उसमें श्रिंकेज होगी एंड अगेन दैट विल फर्दर इन्फ्लेट द इन्फ्लेशन इन द कंट्री। नाउ सम रीसेंट ऑक्शंस दैट वाज डन। सो गवर्नमेंट ने जो जी सिक्योरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं उसके ऑक्शंस किए लास्ट 10 ईयर में, उससे ये पता चलता है they find that the takers of the interest rate being offered by the central bank is struggle to find the sell of the G securities. No bidders were received for such an auction which was actually having G securities जब भी गवर्नमेंट सेल करती है तो उसके बायर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट रिसेंट टाइम्स में मार्केट में जो लो इंटरेस्ट होने की वजह से इसकी सस्टेनेबिलिटी पे खतरा हुआ है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन रीड जी सिक्योरिटीज़, राइट। आप जी सिक्योरिटीज़ के बारे में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Now the RBI has often blamed high administrative interest rate, जहाँ पे सेविंग की अगर बात करें जो स्मॉल सेविंग है उसकी पुअर ट्रांसमिशन हुई है एंड इट हैज कट द रेट इन द इकोनॉमी। पॉलिसी रीथिंक की जरूरत है। हाउ दिस पॉलिसी रीथिंक वुड वर्क, आरबीआई इज इंश्योरिंग दैट रेट डू नॉट राइज इन द पॉलिसी इंड्यूस्ड स्टांसेस, जहाँ पे वो इस कर्व को मेंटेन कर सके सो दैट जी सिक्योरिटी रेट्स आर गेटिंग डाइवर्स्ड फ्रॉम रियलिटी, राइट। गवर्नमेंट वांट कि जी सिक्योरिटी की सेल जितना ज़्यादा बढ़ेगी गवर्नमेंट के पास उतना ज़्यादा कॉर्पस आएगा। नाउ आरबीआई नीड टू प्ले मोर रोल इन रेजिंग द बोरोइंग, ये चाहती है कि वो अपनी जो बोरोइंग है उसको बढ़ा सके एंड द एक्सटेंट ऑफ rate cut in the small savings bank should be carefully calibrated. So at this point of time, I personally feel that the rate should not be decreased. This would definitely have a negative sentiments on the people of this country, right? The small saving rates have been slashed between 0.5% and 1.4% on different estimate. April 2020 में ये already इस तरह के actions government ने लिए हैं, ब्रिंगिंग द पीपीएफ जो रेट थी 7.9% तक घटा करके 7.1% कर दिया गया, राइट। सो डेफिनेटली अ रीथिंक इन द पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। नाउ द अदर न्यूज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, ईरान रिफ्यूजेस टू गिव न्यूक्लियर साइट्स इमेजेस टू यूनाइटेड नेशन। दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2, bilateral regional grouping and agreements. So recently the Iranian parliament had decided that they will never hand over the images from the inside of Iranian nuclear sites. Iran ने categorically ये कहा है they won't be supplying, they won't be providing any critical images from their nuclear sites to the UN watchdog, right? So definitely a very strict apprehension coming from the Iran. So they said that a watchdog monitoring agreement with the agency would be expiring and they want the images, but they have said that they won't be sharing. So the announcement could further complicate the talks between Iran and 6 major power जो कि revive करने की कोशिश कर रही है 2015 के बाद जो न्यूक्लियर डील को लेकर के, राइट। सो 3 years ago जो यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने विड्रू किया था इस तरह के पैक्ट को, रीइम्पोज किया था सैंक्शन वापस से ईरान पे, राइट। सो नाउ इट इज अपॉन द ईरान हाउ दे मूव, बिकॉज they are very strict and they have said that they won't be sharing any images. This shows that Iran has its own basically plan for the nuclear things. Now Iran government की अगर बात करें उनकी क्या stand, so the spokesperson from the parliament have said, जो वहाँ के national security and foreign affairs committees है, they said that Iran will also turn off IEA cameras in the United Nations, fails to remove all sanctions. जब तक उनसे sanctions नहीं हटाए जाते हैं तो जितने भी IEA के कैमराज हैं उनको भी वो शट डाउन कर देंगे, राइट। एंड IEA एंड तेहरान स्ट्रक अ 3-month मॉनिटरिंग एग्रीमेंट इन फरवरी, जो कि एक तरह से कुशन प्रोवाइड कर रही है ईरान को भी इन कोऑपरेटिंग एजेंसीज एंड monitoring some of the activities otherwise have been access to continue. So if Iran
tend to continue, if Iran tend to cooperate, definitely this would help them to remove the sanction or lift the sanctions. Now under the agreement जो May 24 को हुई थी, which was extended for a month, यहाँ पे data continues to be collected in the black box type agreement और IEA ने कहा है this is only able to access for its later date. So this is again a state of confusion arising between IAEA, International Atomic Energy Agency जो है उसके बीच में और ईरान के बीच में देखना होगा कि how they manage and coordinate between each other. Now the Prime Minister pitches for an early vaccination and avoid hesitancy. This is something which Prime Minister said in his recent Mann Ki Baat. This is important for your issues related to development and management of health. So Prime Minister has highly pitched that he has urged all the citizens of this country to take the vaccine and avoid vaccine hesitancy. Vaccine hesitancy India में काफ़ी ज़्यादा है. आपने देखा होगा कई सारे न्यूज़ में people are observing that they are having some magnetic effect on the body. Some people are having other level of infection, but this is not because of the vaccine. तो बहुत ही कम लोगों में, even in 10,000, one person can be seen with some minor effects, right? Fever, headache, these are some of the common symptoms that took place while you take the vaccine. Right? So this involved the inoculation soon. So the Prime Minister has urged the people to trust the science and scientists to combat the COVID-19, right? Which is still remain among us. और इंडिया में अभी भी अगर वैक्सीनेशन की बात करें, टोटल वैक्सीनेशन जो हुई है दोनों डोज की वो ओनली 4% है और एवरेज जो 1 डोज की वैक्सीनेशन है वो 28% के आसपास है. सो वी डेफिनेटली वी नीड टू इंक्रीज द पेस ऑफ द वैक्सीनेशन एज वेल. Over 31 crore doses has been vaccinated till date. अभी तक 31 करोड़ की जितनी पॉपुलेशन है हमारी 136 करोड़ के आसपास, उसमें 31 करोड़ तक ही अभी वैक्सीनेशन हो पाई है. एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज हेल्ड द फैक्ट दैट 21 जून को जब वैक्सीनेशन फ्री किए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्री किया था सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए. दिस वाज द डे व्हेन इंटरनेशनल योगा डे वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड. ऑन दैट वेरी डे इंडिया सेट अ रिकॉर्ड of inculcating 86 lakh volunteers or citizens of this country with the vaccines, right? But again, these numbers were not repeated on the next very day. Uske baad numbers were around 21 lakh or it was around 30 lakhs. So definitely if we maintain the pace of 50 lakh also a day, it would be a very great achievement for a country like India. Now you can see how the vaccination is all about. This is a response which was taken, a survey that was being conducted in urban areas. They asked, the two timeline has been provided, one for the January, another for the March. So I will be vaccinated as soon as vaccine would be available. So in January 33% people said yes, another 57% said in March, right? You can see the number has increased. I will wait for the month to ensure the vaccination is safe. In January it was only 41%, now in March it reduced to 20%. I will get vaccinated only if compulsory by the government or employees, because government ने ये भी कहा है कि वो सारे लोगों को कंपलसरी कर सकती है. बट मणिपुर हाई कोर्ट ने बेसिकली ये एक ऑर्डर दी है कि गवर्नमेंट कैन नॉट एनफोर्स एनी इंडिविजुअल टू टेक वैक्सीन, राइट? वो उनकी अपनी पर्सनल लिबर्टी है, फंडामेंटल राइट है कि वो वैक्सीन ले या नहीं ले. तो दिस इज अनदर कोर्स ऑफ डिबेट दैट विल हैव इन अदर डिस्कशन. तो अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए, अगर गवर्नमेंट कंपलसरी करती है तो 11% ने कहा था दे वुड टेक एंड 9% वाज देयर इन द मार्च 2020, राइट? सो दिस इज अ सर्वे व्हिच वाज कंडक्टेड इन द अर्बन इंडिया. Now countering the next wave of COVID-19, this can be important for the General Studies paper 2, government policies and intervention for the development of various sectors. So in this editorial, which talks about a roadmap, we'll see what are the important issues that would be discussed under this editorial. So this talks about roadmap for the next COVID wave 19. Basically, we're talking more about the third wave of the COVID. और 3 important subheads हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. फर्स्ट इज इलास्टिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, a mobility framework that is required, and building on the federal institutions. तो एडिटोरियल में बात की गई है कि किस तरह से एक जो फोकस शिफ्ट है वो ज़रूरी है हमारे प्रिपरेशन को लेकर के फॉर द थर्ड वेव. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इंडिया टू आस्क हाउ इट कैन मार्शल रिसोर्सेज बेटर. जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, एम्यूनिटीज़ हैं, उनको हम बेस्ट जो पोटेंशियली या पॉसिबली किस तरह से यूज़ कर पाएंगे.
इट रिक्वायर अ कोऑर्डिनेटेड अक्रॉस द स्टेट, एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है जहाँ पे द स्टेट गवर्नमेंट, द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड अदर रियल टाइम जो एनालिसिस ऑफ डेटा है वो अवेलेबल हो पाए और सारी पोटेंशियली जो हमारे पास मैन पावर है उसकी यूटिलाइजेशन हो सके। नाउ इलास्टिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलास्टिक? द टर्म इलास्टिक मीन दैट द नेशनल कैपिटल मस्ट एक्सपीरियंस द हाइट टू इंपॉर्टेंट इशूज। ठीक है, इलास्टिसिटी के बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा। द फर्स्ट इज लाइक अगर नेशनल कैपिटल एक्सपीरियंस की अगर बात करें, दैट हाईलाइट्स द टू इंपॉर्टेंट इशूज। फर्स्ट, कि कोविड-19 की जो वेव है दैट रिक्वायर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी इलास्टिक, मतलब एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेस ऑफ रिक्वायरमेंट, राइट। इफ सपोज जिस तरह से आपने दिल्ली में देखा कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई थी बट वी वर एक्चुअली नॉट हैविंग द सफिशिएंट ऑक्सीजन, सो बाहर से बहुत सारी चीज़ों को जो क्रायोजेनिक टैंकर्स थे उनको इम्पोर्ट किया गया, फिर प्लांट लगाए गए। सो वी शुड हैव सच कैपेसिटी कि जब ज़रूरत पड़े तो हम उसको इलास्टिक करके और ज़्यादा स्ट्रेच कर सके, उसमें और ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सके, और नहीं ज़रूरत पड़े तो वो रिजर्व में हो, राइट। इलास्टिसिटी मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट यू कैन यूटिलाइज दैट पार्ट। सेकेंड इज डिमांड ऑफ द कोविड-19 स्पेसिफिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि स्पार्सली वैलिड है। प्रिपेयरिंग फॉर द थर्ड वेव, विच एक्सपर्ट आर सेइंग दैट इट वुड कम, बट जो इंटेंसिटी होगी थर्ड वेव की वो सेकेंड वेव से काफ़ी कम होगी। And thinking about differently health infrastructure to focus on where we can build our capacity locally and we can move capacity in response to the surges, right? So these are some of the important things that would be required in terms of building a elastic health infrastructures. Mobility framework की बात की गई है। What is mobility framework? In order to build a capacity, we need to have a move healthcare infrastructure जो एक जगह से दूसरे जगह पे जा सके। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर किसी बिल्डिंग को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, बट इस तरह की कोशिश की गई थी चाइना में, जहाँ पे वुहान पे फर्स्ट टाइम में जब पेंडेमिक हुई थी, दे हैव बिल्ड सच मोबाइल हॉस्पिटल्स दैट दे कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पे मोबिलिटी का मतलब है, अब जैसे इंडियन रेलवेज की ट्रेन यूज की गई थी, राइट। मेनी ऑफ यू मस्ट बी अवेयर दैट इंडियन रेलवे हैज प्रोवाइडेड देयर ट्रेन। सो इफ अ ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट वुड बी कॉल्ड एज अ मोबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कोविड कोचेज, राइट। उसमें मोबिलिटी काफ़ी हाई है। तो उस तरह की कुछ हमें फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। दे नीड टू हैव अ डिस्टिंक्ट पॉलिसी दैट नीड सम इनोवेशंस। फर्स्ट, हेल्थ केयर के जो वर्कर हैं, इट मे बी पॉसिबली, तो क्या होगा कि फ्रॉम वन स्टेट, फ्रॉम वन टू अनदर, दे कैन बी इंडक्ट एंड ट्रेन फॉर द फाइनल मेडिसिन्स। अ नर्सिंग स्टूडेंट कैन हैव रिहायर रिटायर द मेडिकल पर्सनल। तो यहाँ पे बात की गई थी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में, MBBS की डिग्री में, उनको बेसिकली इंडक्ट किया जा सके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सो दैट दे कैन गिव द ड्यूटी। सेकेंड, रिसोर्सेज विद हाई मोबिलिटी कॉस्ट नीड टू इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट। परमानेंटली रिस्क है यहाँ पे। एक इक्वलिटी इंश्योर करने की जरूरत है जहाँ पे पुअर लोगों को भी सर्व किया जा सके। थर्ड इज द स्पेशल इक्वलिटी, दैट मीन्स इफ वी कांट ब्रिंग रिसोर्सेज टू पेशेंट्स, वी कैन ब्रिंग पेशेंट्स टू रिसोर्सेज। कई बार क्या होता है कि मान लो किसी रिमोट एरिया पे आपको ज़रूरत है क्रायोजेनिक या लिक्विड ऑक्सीजन की, वहाँ तक अगर नहीं पहुँच पा रही लिक्विड ऑक्सीजन या ICU वहाँ तक नहीं आ रही है, तो पेशेंट्स को हम वापस रिसोर्सेज के पास ला सकते हैं। सो पेशेंट कैन बी रीच टू द metro areas or the urban areas, right? So this is what this statement says, that resources cannot come to patient, but definitely patient can reach to the resources. Now building a federal institution, this is something which would be required. और ये फेडरल इंस्टीट्यूशन कैसे बिल्ट होगी, जहाँ पे हमें एफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत है। वी नीड टू हैव अ रिसोर्स शेयरिंग दैट वुड इंक्रीज द कवरेज एंड सर्ज द रिस्क ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूटेड। जो वाइडली रीडिस्ट्रीब्यूटेड है उस तरह की अप्रोच की ज़रूरत है। जो बेनिफिट्स होने चाहिए वो शेयरिंग हो, दैट पॉसिबली इन द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट बाउंड्रीज। कोविड-19 प्रेजेंटेड है इंडिया में, या अनप्रेसिडेंटेड है, दैट वी नीड टू बिल्ड अ हेल्थ कैपेसिटी, वी नीड टू इंक्रीज द ओवरऑल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर in terms of building the challenges that we can face in the future, right? So beating the successive wave that require enabling governance structures, retreat the COVID-19 as a national calamity. Government ने already National Disaster Management Act लगाया हुआ है 2005, which called for a highly supervision healthcare infrastructures, right? And a coordination across the state and district is required. And here, apart from the state and district, the central and state coordination is much more essential, right? So based on the real-time analysis of the data and innovation institutional
is again a solution. So definitely we have to work towards public-private partnership also that can give some good insights and help the state government and the central government to build some robust healthcare infrastructures. So this is how you can conclude your answer if you're writing in the mains paper. Now coming to the MCQs question of the day, and before I start with the question, just to tell you the answers of Saturday question. For the first question, the correct option here is C, and for the second question, the correct option is again C. Now moving to the today's question of the day. The first question, consider the following statement about National Science Day. National Science Day is celebrated every year to commemorate the discovery of Newton's law. And themes for 2021 NSD: future for STI, science, technology and innovation, impact on education, skill and work, right? So which among the following is the correct option? You have to tell me in the comment section. If you know the correct answer, do write in the comment section down below. Second, consider the following statement regarding the National Institution Ranking Framework. The first statement called for Niti Aayog establish the NIRF in September 2015. This was a framework that outlined the methodology to rank the institution across the country, right? So again, a nice question, a good current affair based question. If you know, do write your answer in the comment section down below. So this was all about the daily news and editorial analysis, followed by the MCQs question. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.